नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लालचंद्र सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो गया है 5 की पंचायत का। आज पंचायत का विषय यह है कि क्या एसआईआर के विरोध की कोई सीमा है भी या बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक बवाल अपने चरम पर है। सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ रखी है, लेकिन इस लड़ाई में वो न सिर्फ देश के गृह मंत्री अमित शाह के प्रति शब्दों की मर्यादा को लांघ रही हैं, बल्कि चुनाव आयोग को भी खुला चैलेंज देती हुई नजर आती है। इस समय सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। Minister Narendra Modi ji, the civil aviation is interconnected in this country. And I'll try to stick to the points that have been mentioned in the resolution, which I feel is also very important to address today. The first point is to initiate appropriate measures to regulate the airfare in such a way that there is a reasonable upper limit to the maximum fare that an airline can fix in a route. Madam, taking up this point, let me start by looking into the aspect of deregulation in the country. Some speakers have already spoken about it. The deregulation starts with Air Corporations, the regulation starts with Air Corporations Act of 1953. That was the time when they decided that the airfares need to be regulated. There was a committee which was there and which was looking into all the regulations and the capping of fares and deciding what the tariff should be. But then in 1994, it was decided that the aviation sector should be deregulated. And it was deregulated, that idea that came up, and then the Air Corporations Act was repealed in 1994. And the idea behind the deregulation at that time was to allow the sector to grow. Open sky was mentioned because there was so much demand and potential in the country, and considering the global way of how civil aviation was observed across the world, all the countries who have seen exceptional growth in their own country in civil aviation, they had deregulated markets. The deregulation of markets, one, lets the sector open up for many players to come in, and it also encourages competition at the same time. When you are saying deregulation, you are letting the market dynamics flow in, you are letting the market supply and demand play its own role, so that the ultimate benefit is got by the passenger who is taking the ultimate benefit. So it is with that idea in 94 itself, the deregulation has happened, and from then we have seen that multiple airlines have come in and multiple challenges for airlines. Some have gone out and new airlines have come in. But the idea still remains that if the civil aviation network, the aviation sector, if it needs to grow, the first and foremost thing is to keep it deregulated so that the competition survives, more players can come in. Madam, and coming back to the whole deregulation aspect, even though I am saying that the market is deregulated, let me also come to the fact that according to the Aircraft Act that we have right now, there is power with the central government that in extraordinary circumstances, when there is a possibility that there is a misuse of the air tariff deregulation that we have set up, then there is the power with the central government to interfere and set things right, to cap the fares so that the passenger does not experience opportunistic pricing at that point of time. And one of the examples for that, a good example there would be COVID. And you have seen how much of a challenge it has been during COVID for aviation on one side and also for the passengers because of the mismatch in the supply and demand at that time. And it is at that time the government decided to step in, and based on the timing, the time it takes to travel from point A to point B, certain categories were created, and according to the categories, the central government exclusively used its power to cap the fares, and it has done it. And not only at that time, that was not the only example of when the government has stepped in and looked after the passenger and looked after the airfares in the market. There is another example that I would like to give, which is of the Mahakumbh. We have seen that there was extraordinary demand for people across the country and outside the country also who wanted to go to Prayagraj at that time. And because of the sudden surge in demand and the capacity being same as what it was before, there was a huge rise in airfares at the time. So what the government did at that time was to cap the fares which were going to Prayagraj. That was the second instance. And the third instance, when we have seen in Pahalgam, when the attack happened at that time,
And Srinagar, especially, this is a different kind of situation where people were trying to come out of Srinagar. So it was at that time, again, to facilitate for the people and the passengers who were coming out. We observed that there was a necessity for government to interfere. We exclusively used the power, and we have capped the fares again. While keeping the market deregulation intact, because the whole idea of open sky needs to be there for competition to survive, whenever it was necessary in those extraordinary circumstances, the government has used its power. And recently also we have seen during the Indigo crisis where there was a capacity constraint. There were many cancellations. There were many routes where the airlines was not able to operate, because of which there was a capacity constraint. So again, it was observed that if we don't interfere, there could be a rise in airfares. Immediately we have stepped in, we have released an order, and this time we have done the categories based on the distance, and clearly we have communicated to the airlines that there has to be a capping in airfares. I'm mentioning the point saying that because the government has the exclusive power in extraordinary circumstances when they feel that the airfares are rising above the normal and becoming abnormal, then we are taking up that step. Another initiative that we have taken. This ministry is continuously connected to the people and listens to the people, takes feedback from the people. And that has been the complete approach of this government, especially under the leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji. Alliance Air, still a government entity. It is running ATRs across the country. It is especially running the most important routes in the Northeast area, and also many different destinations where it might not be viable for different players to come in. Government has taken it upon itself to run those routes so that the people in those areas also get connectivity. The new initiative, the new experiment we have started, this was very recently in October we have started with Alliance Air, was Fare Se Fursat. We wanted to see, because there is a lot of... सीधा प्रसारण आप देख रहे थे लोकसभा से, जहां नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू बता रहे थे कि जो हाल में घरेलू उड़ानों को लेकर जो चीजें सामने आई थी और जिस तरह से बाकी एयरलाइंस ने अपनी भाड़े को बढ़ा दिया था, अपने पैसेंजर भाड़े को बढ़ा दिया था, उस पर वो जानकारी दे रहे थे कि सरकार समय समय पर इसमें दखल देती है। और जो अभी हाल की जो क्राइसिस रही घरेलू उड़ान को लेकर के, उस पर वो अपनी बात रख रहे थे नागरिक उड्डयन मंत्री। बहरहाल हम आज जो पंचायत कर रहे हैं वो ये कि क्या एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी सीमा पार कर रही हैं क्या? क्योंकि एक तरफ वो गृह मंत्री अमित शाह के लिए अपशब्द कह रही हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के लिए खुला चैलेंज देती हुई नजर आ रही हैं। तो एसआईआर को लेकर साथ ही वो पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भी हिंसा के लिए उकसा रही हैं, भड़काने से गुरेज नहीं कर रही हैं। वो महिलाओं से बीजेपी से लड़ने का आह्वान करते हुए कहती हैं कि मैं देखना चाहती हूं कि हमारी महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली हैं या फिर भाजपा। हालांकि संविधान की दुहाई देती है टीएमसी, लेकिन उसके सांसद, बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, बात यहां संसद में क्या हो रहा है उसको देखिए। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं टीएमसी के सांसद, वरिष्ठ सांसद हैं सौगत रॉय, संसद परिसर में खुलेआम देश में बैन हो चुकी सिगरेट को पीते हुए नजर आए। और जब उनसे पूछा गया तो अजीब सी दलील दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो ज्यादा खतरनाक है, एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा। अपनी गलती मानने की वजह से बीजेपी को ही नसीहत दे रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के प्रदूषण पर ध्यान दे ले। और इसके साथ ही बात सिर्फ इतनी नहीं है, संसद के अंदर भी टीएमसी के एक सांसद ने ई सिगरेट पिया, ऐसा आरोप है कि ई सिगरेट अंदर बैठ के पी रहे थे। तो सारे मामले को अगर आप मिलाकर देखिए तो ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी क्या देश के संविधान और कानून से ऊपर हैं क्या? क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उससे तो यह सवाल उठता है। और इसमें बड़ा मुद्दा यह है कि क्या एसआईआर के विरोध में सारी सीमाएं खुद मुख्यमंत्री पार कर रही हैं क्या? तो इसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई। जरा पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं, फिर अपने मेहमानों से पंचायत में जुड़ेंगे। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিলআপ করিনি। কেন করিনি? 3 মাস সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি।
আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো। মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। এতদিন যখন করিনি, যতদিন থাকবো করতে দেব না, দেব না, দেব না। ওরা বলছে তাড়িয়ে দেবো রোহিঙ্গা। কোথায় রোহিঙ্গা দেখাও, কোথা থেকে এলো? बंगाल में डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं होगा। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं अंडमान और निकोबार, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सम्मान्य उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी, पद्मश्री पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, जिनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री आशीष शेलार जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्री अमेया हेटे और श्री नरेंद्र हेटे जी, और आज इस सभागार में उपस्थित वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके विचारों को, उनके कर्तृत्व को और उनके जीवन कवन को एक प्रकार से पूरे देश तक पहुंचाने के लिए सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज एक पवित्र भूमि पर हम सब एकत्र आए हैं। आजादी के पहले जिसको यहां लाया जाता था, अपने आप कोई नहीं आता था। जिसको यहां लाया जाता था, परिवार उसको भुला देता था। काला पानी की सजा उस जमाने में कोई नहीं सोचता था कि काला पानी की सजा से कोई वापिस भी आएगा, और अगर वापिस भी आया तो शरीर, मन, आत्मा इतने शीर्ण विशीर्ण हो जाते थे कि वो अपने मूल स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु आज ये हम सब भारतवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान बना है, क्योंकि यहां पर वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को बिताया है। ये स्थान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की स्मृति से भी जुड़ा है, क्योंकि जब आजाद हिंद फौज ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया, तब सबसे पहले भारत की जिस भूमि को आजाद कराया, उसमें यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जहां सुभाष बाबू 2 दिन भी रहे थे। और उन्होंने ही इस वक्त इस द्वीप समूह को शहीद और स्वराज 2 नाम देने का सुझाव दिया था, जिसको नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनकर जिसको जमीन पर उतारने का काम किया। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह नहीं है, एक प्रकार से असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग, समर्पण
और अक्षुण्ण राष्ट्रभक्ति के तपोभूमि है। यहीं पर अनेक लोगों ने अपने जीवन की आहुति भी दी है। यहां पर अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मैं बहुत डिटेल सेल्युलर जेल के रिकॉर्ड का स्टडी किया हूं। 2 ही जहां से यहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी नहीं मिली है। समग्र भारत से, हर प्रांत से कोई ना कोई इसको यहां पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। ये तपोभूमि है। और मित्रों, आज बहुत बड़ा अवसर है कि यही तपोभूमि पर वीर सावरकर की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। और लोकार्पण सावरकर जी के विचारधारा को एक प्रकार से सही मायने में आगे बढ़ाने का काम जो संगठन कर रहा है, इसके सरसंघचालक पूजनीय मोहन जी के हाथों से हुआ है। ये भूमि भी पवित्र है, वीर सावरकर की स्मृति भी पवित्र है, और मोहन जी के हाथ से इस प्रतिमा का अनावरण और सोने में सुहागा की तरह इसको चिर स्मरणीय बनाता है। मित्रों, आज जो प्रतिमा लगी है वो सालों तक वीर सावरकर जी के बलिदान, संकल्प और भारत माता के प्रति अखंड समर्पण का एक प्रकार से प्रतीक रहने वाली है। ये प्रतिमा कई दशकों तक आने वाली पीढ़ियों को सावरकर जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देगी। ये वीर सावरकर ने करे हुए आह्वान को हमारे युवाओं को आत्मसात करने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। वीर सावरकर का साहस का संदेश, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता का संदेश, दृढ़ता का उनका गुण और राष्ट्रीय एकात्मता और सुरक्षा और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को युवाओं को सौंपने का एक बहुत बड़ा स्थान बनेगा। सावरकर जी का एक वाक्य मेरे जैसे कई सावरकर जी के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीरता ये भय का अभाव नहीं है। वीरता भय ऊपर प्राप्त की हुई विजय है। जो भय को नहीं जानते हैं वो हमेशा से वीर होते हैं, परंतु सच्चे वीर ये होते हैं जो भय को जानते हैं और परास्त करने का साहस रखते हैं, वो ही वीर है। और सावरकर जी इस वाक्य को जिए हैं। जब उन्होंने इस देश को आजाद कराने का प्रण लिया, पंडित जी ने कहा तभी मुझे मालूम पड़ा कि 11 साल की आयु में शिव स्तुति की रचना उन्होंने की थी। मुझे मालूम नहीं था, और वो भी तिलक महाराज के सामने की थी। ये गुण उनके बाल सहज मस्तिष्क में से उभरा हुआ गुण था। परंतु जब वो बड़े हुए, इंग्लैंड गए, तब उनको मालूम था कि किस प्रचंड शक्ति के खिलाफ वो भारत माता को आजाद कराने का प्रण लेकर निकले हैं। इसका भय नहीं है, भय नहीं होगा ऐसा कोई न माने, परंतु मातृभूमि के प्रति उत्कंठ समर्पण का भाव ये भय के ऊपर विजय प्राप्त कर गया और वीर सावरकर बने। मित्रों, यहां पर आज एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। मैंने ध्यान से देखा है नहीं है, मगर उसका जो कवर पेज है उसको देखा है। सावरकर जी के सभी गुणों को इसके अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। सावरकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कई महानुभावों का आज यहां पर सम्मान भी हुआ है।
पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी। शायद इस सभागार में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने सावरकर जी को सदैव देखा है, ऐसे पंडित जी का सम्मान हुआ। डॉक्टर विक्रम संपत जी, जिन्होंने बहुत तरीके से सावरकर जी के जीवनी को पुस्तक में संजोने का काम किया है। रणदीप हुड्डा, मैं जब सुना कि रणदीप जी वीर सावरकर की भूमिका एक फिल्म में अदाकार के रूप में अदा करने वाले हैं, तब मुझे लगा कि रणदीप जी ने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। सावरकर जी के चेहरे पर जो दृढ़ता, जो आत्मविश्वास, जो देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का जो भाव था, वो कोई कलाकार नहीं ला पाएगा। मगर रणदीप जी आप सफल हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपने सावरकर जी के जीवन चरित्र को आज की युवा पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। सागर को कोई बांध नहीं सकता। इस प्रकार से सावरकर जी के गुणों को, उनके जीवन की ऊंचाई को और उनके अनेक आयाम वाले व्यक्तित्व को पुस्तक, कविता या फिल्म में संजोकर रखना बहुत कठिन है। मगर ये जो प्रयास हुए हैं अलग अलग स्तर पर, वो प्रयासों ने आने वाली पीढ़ियों को सावरकर को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया दिया है। इसलिए आज जिन सभी महानुभावों का सम्मान हुआ है, उनको भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। आज पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी और उनकी टीम ने जो संगीतमय प्रस्तुति की, इससे पूरे भारत के लोग आह्लादित होंगे। ये कार्यक्रम जो भी देखेगा वो कुछ साल पीछे चला जाएगा। मराठी में की, काफी लोगों को लगा होगा कि मैं तो मराठी नहीं हूं, मगर मैं आधा मराठी हूं। मेरी पत्नी महाराष्ट्र से आती है, तो मुझे मराठी समझ में तो आती है। और सागरा प्राण तरमरला, ये गीत एक प्रकार से मातृभूमि के विरह में लिखा हुआ गीत है, परंतु ये आजादी की युद्ध के लिए प्रस्थान गीत भी है। उसी गीत में उन्होंने सागर जितनी समस्या को भी भारत माता आचमन कर कर पी जाएगी, ऐसा भाव उन्होंने रखकर ये आजादी का एक प्रकार से उद्घोष उन्होंने किया था। यहाँ शरद पोंक्षे जी का भी सम्मान हुआ। और आज सावरकर जी के सम्मान में 116 साल पहले रचे हुए अमर गीत को, सागर तुम मेरी मातृभूमि की ओर ले चलो, प्राण अब कुंठित होते हैं। मित्रों, प्राण कुंठित तभी होते हैं जब विरह, वेदना, सहन शक्ति के बाहर जाती है। एक देशभक्त युवा विदेश के किनारे पर रहकर जब कहता है कि मातृभूमि के विरह से मेरे प्राण कुंठित होते हैं, वो ही देशभक्ति की पराकाष्ठा का वर्णन कवि इससे अच्छे शब्दों में नहीं कर सकता। ये गीत की रचना इंग्लैंड के ब्राइटन सागर किनारे पर की गई और इसके एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में मातृभूमि के प्रति अमर प्रेम झलकता है और यही इस गीत को अमर बनाता है। वो ये भी कहते हैं कि मुझे वहां ले चलो जहां मेरी जड़ें हैं, जहां का हर कण मेरे अस्तित्व को पहचानता है। व्यक्ति का अस्तित्व सिर्फ सरस शरीर से नहीं बनता है। व्यक्ति का अस्तित्व जिस विचारधारा का वो अनुसरण करता है, वो विचारों से भी होता है। व्यक्ति का अस्तित्व, आत्मा जिसको श्रेष्ठ मानती है, वो संस्कृति से भी होता है और व्यक्ति का अस्तित्व उसके कर्म से भी होता है। और वीर सावरकर के ये तीनों गुणों को
अगर कोई पहचान पाता है भी होता है। व्यक्ति का अस्तित्व, आत्मा जिसको श्रेष्ठ मानती है वो संस्कृति से भी होता है, और व्यक्ति का अस्तित्व उसके कर्म से भी होता है। और वीर सावरकर के ये तीनों गुणों को अगर कोई पहचान पाता है तो भारत ही पहचान सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा था, मुझे वहां ले चलो जहां मेरी जड़ें हैं, जहां हर कण मेरे अस्तित्व को पहचानता है। मित्रों, मैं बहुत छोटा था, सावरकर जी के बारे में उस वक्त के शिक्षा पाठ्यक्रमों में कोई बहुत पढ़ाया नहीं जाता था, मगर जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना, हम सबके मार्गदर्शक थे प्रोफेसर नारायण राव भंडारी। नारायण राव भंडारी ने मुझे एक पंक्ति दी। वो पंक्ति थी, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ वीण जनन ते मरण। ये वाक्य नारायण राव भंडारी ने मुझे दिया था, और उन्होंने कहा था, अमित, तेरे जैसे युवाओं ने इसको जीवन का ध्येय वाक्य बनाना चाहिए। मुझे मराठी नहीं आती थी, थोड़ा बहुत समझ में आता था। मैंने भंडारी जी को कहा कि भंडारी जी, ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया और उसका भावार्थ क्या है? तो उन्होंने कहा, ये वाक्य वीर सावरकर का वाक्य है कि मातृभूमि, तेरे बिना जीवन मेरे मृत्यु के समान है, और तेरे लिए मृत्यु ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, मेरे लिए जीवन है। और मित्रों, ये वाक्य ने अनेक युवाओं को जीने की प्रेरणा दी होगी, मरने की प्रेरणा दी होगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, एक समय था जब देश के लिए मरने की जरूरत थी, देश के लिए शहीद होने की जरूरत थी। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, परंतु देश के लिए जीने की जरूरत तो आज भी है। तभी जाकर सावरकर की कल्पना का भारत हम बना सकते हैं। हमारे युवा अगर सावरकर जी की कल्पना का भारत बनाना चाहते हैं तो जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वो क्षेत्र के अंदर सावरकर जी की प्रेरणा के अनुरूप जीवन जीकर जीवन का लक्ष्य सुरक्षित और सबसे समृद्ध भारत माता की रचना करना, भारत की रचना करना, ये हमारा होना चाहिए। मित्रों, सावरकर जी के जीवन को जब ध्यान से देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति आने वाली सदियों तक शायद फिर से इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। इतना महान व्यक्तित्व। वो राइटर भी थे, वो फाइटर भी थे, वो जन्मजात देशभक्त थे, एक आर्ष दृष्टा भी थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, एक बहुत बड़े कवि और लेखक भी थे। गद्य और पद्य दोनों पर सिद्धता हो ऐसे साहित्यकार बहुत कम है, मगर मैंने सावरकर जी के साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं निर्णय पर ही नहीं पहुंच सकता हूं कि वो अच्छे कवि थे या अच्छे लेखक थे, दोनों में वो उत्कृष्ट थे। वो एक बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे। पंडित जी ने कहा ऐसे अनेक शब्द उन्होंने अपने आप बनाकर हमारी भाषाओं को पूर्ण करने का काम किया है। आज गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का विभाग भी आता है, राजभाषा का विभाग आता है। तो राजभाषा मतलब हिंदी का प्रवाह, जीवन प्रवाह, और भारतीय भाषाओं का जीवन प्रवाह पर अध्ययन होते हैं। लगभग 600 से ज्यादा शब्द ऐसे हैं जो वीर सावरकर जी ने हमारी भाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे शब्दकोश में दिए हैं। और मित्रों, मैं कुछ 2-3 शब्द आपको बताना चाहता हूं। हम पिक्चर देखते हैं, आर्ट डायरेक्शन किसका है? आर्ट डायरेक्शन सावरकर एरा के पहले कहीं इसका हिंदी नहीं था, कहीं इसका भारतीय भाषाओं में समावेश ही नहीं था। सावरकर जी ने कहा मैं विदेशी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा। उन्होंने आर्ट डायरेक्शन को कला निर्देशन कर कर एक नए शब्द की रचना की। डायरेक्टर की जगह निर्देशक, ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जो सावरकर जी की पेन से निकले। या तो उन्होंने शोधे या सृजन किया, परंतु
उसको सामान्य बोलचाल में लाने का काम किया। मित्रों, एक हिंदुत्व के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखने वाला एक जीवन था, जो आधुनिक भी था और परंपराओं को भी साथ में लेकर इसका वहन करने वाला भी था। वीर सावरकर जी ने अस्पृश्यता को निवारण के लिए जो योगदान दिया है, इस देश ने इसके लिए कभी सावरकर जी का सम्मान नहीं किया। सावरकर जी ने हिंदू समाज की सारी कुरीतियों के खिलाफ उस वक्त संघर्ष करने का काम किया और उसको समाज का विरोध झेलते हुए भी आगे बढ़े। एक क्रूस क्राय शरीर के अंदर कितनी प्रचंड दैदीप्यमान आत्मा बसती थी, कितना दृढ़ निश्चयी और देशभक्त व्यक्ति इसके अंदर जीवन जीता था। उसका अंतिम शिखर तब आया जब वो बीमार हो गए थे। बीमार होने के बाद आज के जमाने में हम लोग देखते हैं, हम सब करते हैं, अपने परिजनों को बचाने के लिए वेंटिलेटर रखते हैं, नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि एक क्रूस का शरीर अब भारत माता के कोई काम का नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं पुनः जन्म लूंगा, अब मुझे जीने की जरूरत नहीं है। और अपने आप का आत्म बलिदान करने का काम वीर सावरकर ने किया। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, जिसको हम सब सच मानते हैं, मगर कई जगह इसको मान्यता नहीं है, इसके प्रति इतना दृढ़ विश्वास और वो मृत्यु का कारण बने, वो सावरकर जैसा महान व्यक्ति ही कर सकता है। एक जीवन में 2 जन्मठिप जिसको दे दी, वो व्यक्ति कितना भयजनक अंग्रेजों को लगता होगा, वो ही इनके प्रचंड सामर्थ्य का परिचायक है। आजादी के आंदोलन में अंग्रेज आए तब से गए तब तक किसी को फांसी तो दी, मगर एक जीवन में 2 जन्मठिप किसी को नहीं दी और वीर सावरकर को ही वो सम्मान प्राप्त हुआ। और जब सेल्युलर जेल में आए तब अंग्रेज जेलर ने उनको कहा कि सावरकर, आप आए तो हो, मगर आपका आयुष्य इतना नहीं है, आप वापस कैसे जाओगे? उन्होंने कहा, मैं जरूर वापस जाऊंगा, तेरी सल्तनत की आयुष्य मेरे आयुष्य से कम है, मैं भारत माता को स्वतंत्र देख कर जाऊंगा। कितना दृढ़ आत्मविश्वास इस देश के भविष्य के प्रति, भारत माता की स्वतंत्रता के प्रति और इस देश के उज्जवल भविष्य के प्रति होगा। और मित्रों, आज मैं मानता हूं कि हम एक ऐसी भूमि पर बैठे हैं जहां भारतीय सशस्त्र क्रांति की नींव डालने वाले वीर सावरकर की भी ये भूमि पावन की है, और उसका सर्वोच्च शिखर सुभाष बाबू थे, वो भी यहां अपने कदम रखे हैं। ये बहुत पवित्र भूमि है मान्यवर। आज सावरकर जी के जीवन को आज हमारे युवाओं ने इसमें से प्रेरणा लेने का काम सरल हो, इसलिए ढेर सारी चीजों का यहाँ प्रकाशन भी हुआ है और उसको बहुत संगीतमय रचनाओं के साथ यहाँ गाया भी गया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के 16 साल की कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों को, इनके माता पिता को एक अपील करना चाहता हूं। एक बार इस सेल्युलर जेल में, जिस काल कोठरी में सावरकर जी का निवास था, जिसके ठीक सामने लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जाता था, जिससे सावरकर जी की हिम्मत तोड़ दी जाए, वहां 7x11 की कोठरी, रोज खाना भी न मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। सावरकर जैसे विचारक व्यक्ति को किताबों से अलग रखा गया था। रोज कोपरा को बैल के कोलू के अंदर लगकर तेल निकालने की यातनाएं दी थी। वहां पर भी सावरकर जी ने कील के उपयोग से पत्थरों पर साहित्य सृजन करने का काम किया।
और मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, साहित्य सृजन वो ही कर सकते हैं जिसका मन और आत्मा दो में से कुछ कुंठित न हो। दो जन्म टिप देने के बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर भारत माता की प्रार्थना के लिए, भारत माता के यशोगान के लिए साहित्य सृजन करने की हिम्मत है, उससे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। और उनके संकल्प ने ही एक कठोर कालखंड पारित करने की हिम्मत दी। एक ही जेल में दो भाई रहने के बावजूद सालों तक एक दूसरे को देख नहीं पाए। कोई कल्पना कर सकता है? एक ही जेल में दो भाई रहने के बावजूद कई सालों तक एक दूसरे का सामना नहीं हुआ। कितने जुर्म उस वक्त किए गए होंगे, वो इससे हमें मिलता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का चिंतन जिसके आधार पर आज की सरकार चल रही है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, वो उन्होंने ही इसकी नींव व्याख्या करने का काम किया था। मित्रों, ऐसी सामूहिक पहचान जो भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और इतिहास से उपजती है, इसको कई लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें से सबसे प्रखर इसके उपासक वीर सावरकर थे। अंग्रेजों ने शिक्षा के माध्यम से हमारे देश पर हमेशा के लिए गुलामी का बोझ और गुलामी की मानसिकता थोपने का प्रयास किया था। इसीलिए 1857 के स्वतंत्र संग्राम को इन्होंने विप्लव का नाम दिया था। वीर सावरकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम को विप्लव की जगह स्वतंत्र संग्राम का नामाभिधम कर देश की सच्ची स्पिरिट को आगे बढ़ाया। और 1857 प्रथम स्वतंत्रता समर, ये पुस्तक देश के सभी पुस्तकों में एकमात्र पुस्तक ऐसी है जो प्रकाशित होने के पहले ही अंग्रेजों ने इसको बैन कर दी थी। कोई पुस्तक प्रकाशित भी नहीं हुई है, उसको प्रकाशित होने के पहले बैन करने का काम अंग्रेजों ने किया था। उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसको छापना, पढ़ना, बांटना, सभी चीजों पर प्रतिबंध था। क्यों था? क्योंकि उसका टाइटल ही ऐसा था कि 1857 में जो हुआ था वो अंग्रेजों के प्रति विप्लव नहीं है, हमारा स्वातंत्र का अधिकार है। और इसके लिए अनेक हुतात्माओं ने जो बलिदान दिया वो पहला स्वतंत्र समर था। और रूढ़ियों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि हमारा देश रूढ़ियों से ऊपर उठे, रूढ़ियों को त्यागे। मित्रों, आज हम आजाद हुए हैं, लंबी यात्रा कर देश आज यहां पर पहुंचा है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक सरकार बनी है जो लगभग 12 साल से काम कर रही है। और जब देश के आजादी के 75 साल हुए तब नरेंद्र भाई ने एक आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि पंच प्रण के आधार पर हमारे देश की जनता ने हमारी शताब्दी तक, आजादी की शताब्दी तक जाना चाहिए। पंच प्रण में एक प्रण है गुलामी के कालखंड की सभी स्मृतियों को समाप्त कर नए विश्वास के साथ देश आगे बढ़े। और 15 अगस्त 2047 को एक ऐसे महान भारत की हम सब मिलकर रचना करें जो महान भारत समग्र विश्व के अंदर हर क्षेत्र में नंबर 1 पर हो। और मुझे पूरा विश्वास है आज ये आह्वान 140 करोड़ लोगों का संकल्प बना है। और एक व्यक्ति जब एक कदम चलता है तो एक कदम आगे बढ़ते हैं, परंतु एक ही दिशा में 140 करोड़ लोग आगे बढ़ते हैं तो हम 140 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं। यही बात महान भारत की रचना करेगी। भारत समृद्ध भी होगा, भारत सुरक्षित भी होगा, भारत संस्कृत भी होगा और भारत शिक्षित भी होगा। भारत का स्वास्थ्य, हर जन का स्वास्थ्य हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इस प्रकार के भारत की रचना ही वीर सावरकर की कल्पना थी। मैं आज
यहां से एक जन्मजात देशभक्त, एक मूर्धन्य साहित्यकार और दृढ़ता के धनी, वीरता के धनी सावरकर जी को मन पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, पद्मश्री, पद्म विभूषण, सभी प्रकार के अलंकरण जो मिलते हैं वो सरकारें देती है। वीर सावरकर को वीर की उपमा कोई सरकार ने नहीं दी है, देश के जन जन ने देने का काम किया। यही इनकी स्वीकृति बताता है। आज पूजनीय मोहन जी के उपस्थिति में इनकी अमर कृतियों का संगीतमय नए सुरों में पंडित जी ने हम सबको सुनने का मौका दिया। पूजनीय मोहन जी ने एक प्रतिमा का भी अनावरण किया और एक कॉफी टेबल बुक भी बनाया है। मैं आशा करता हूं कि सावरकर का विचार विशेषकर हमारे किशोरों में, युवाओं में और बच्चों में सभी अभिभावक इसको आरोपित करें, इससे संस्कृत करें। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि गुलामी के सारे निशानों को हमें मिटाना है, तो मैं आज यहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति से प्रार्थना करता हूं कि इस अंडमान मिटाना है और संकल्प से हैवलॉक आइलैंड को हम स्वराज द्वीप ही कहेंगे, ऐसा संकल्प करने का आश्वासन हम यहां पर हमारे गृह मंत्री जी के सम्मुख लेंगे। ऐसे में सभी से प्रार्थना करता हूं। इसके पश्चात जिनके शब्द मंत्र बन जाते हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय स्तर संघ चालक जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। हम सब जानते हैं कि संघ क्या काम कर रहा है, शताब्दी का यह वर्ष मनाते हुए क्या काम कर रहा है। यह वही काम है जो स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने कल्पना की थी। सावरकर जी ने एक ऐसा स्वर्णमय इतिहास हमारे सम्मुख रखा जिससे हम कह सकते हैं कि यह याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो मां की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, मां जिस पर बैठी करती थी सुख से जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन। राष्ट्र आराधन के प्रवास के ये सभी मार्गों में हमारा मार्गदर्शन करते हुए हम सभी को अपने वाणी से अभिभूत करने के लिए मैं आज के मुख्य अतिथि परम पूज्य डॉक्टर मोहन जी भागवत से करबद्ध प्रार्थना करता हूं। इसके पहले के भाषण में नारे लगते तो अच्छा होता। आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय अमित भाई शाह, हमारे गृह मंत्री, इस राज्य के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आदरणीय पंडित जी, श्री नरेंद्र जी हेटे, श्री अमेय जी हेटे, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, माता भगिनी और जिनका गौरव आज हुआ वो सभी गौरव मूर्ति। एक अपने यहाँ पर पुराने रिवाज में सुबह उठ के कुछ श्लोकों का पठन होता है, उसको प्रातः स्मरण कहते हैं। उस प्रातः स्मरण के श्लोकों में एक श्लोक ऐसा है, वो पांडवों के बारे में है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। ऐसा पांचों पांडवों के बारे में है, मुझे कंठस्थ है, लेकिन पहला जो कहा है धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, वैसा अगर हम कहें कि राष्ट्र धर्मो विवर्धति सावरकर कीर्तनेन, लेकिन केवल कीर्तन से नहीं होगा। कीर्तन उसको कहते हैं कि हम स्मरण करते हैं।
यहां पर मूर्ति का अनावरण इसलिए हुआ कि स्मरण रहे वो सिंहासन बत्तीसी है। कथा है कि विक्रम राजा सिंहासन चढ़ने वाला है, तो सिंहासन की 32 पैड़ियां और एक एक पर एक एक मूर्ति लगी है। वो पैर रखता है तो पहली मूर्ति कहती है रुको, तुम इस सिंहासन पर चढ़ने वाले हो। इस सिंहासन पर पहले बैठे थे, उन्होंने क्या किया पता है क्या? फिर वो एक कहानी बताती हो और कहती कि विचार करो तुम ये कर सकते हो क्या। ऐसे कीर्तन स्मरण जब करते हैं तो उसका उद्देश्य ही ये होता है, एक तो कीर्तन इसलिए करना है कि वैसा होना है। किसी व्यक्ति का उत्तम स्मरण क्या हो सकता है? आखिर इन सब देशभक्तों ने यहां पर अपने जीवन को बिताया कष्टकार, इसमें सावरकर जैसे लोग वापस आए। वापस आने के बाद भी, अंडमान के जेल से वापस आने के बाद भी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं, वो जारी रखा। जिस प्रकार से कर सकते थे उस प्रकार से किया। तो ये सब करने का कारण क्या था? कारण यही था कि सब लोग ऐसे बने। इसलिए पंडित जी ने जो स्मरण बताया कि इसमें जो गीत में शब्द है बाल गुलाब, यानी अपने देश के सब बच्चे, तो देश के सब लोगों के मन में देशभक्ति का भाव है। वो ऐसा प्रखर होना चाहिए, उत्कट होना चाहिए। ऐसे तो कल्पना किसी ने नहीं की होगी, उन्होंने भी नहीं की होगी कि हम कुछ लोग शस्त्राचार करके अंग्रेजों को भगा देंगे। लेकिन हमारे शस्त्राचार करने से एक और अंग्रेज को धाक, दूसरी ओर अपने लोगों में जागृति, ये बात तो थी। और इसलिए कीर्तन स्मरण ये सारी बातें जो करनी है वो अनुकरण के लिए करनी है। और अनुकरण जिसका करना है वो पूर्ण चाहिए, नहीं तो गलत बातों का अनुकरण, गलती करने वाले का करेंगे तो गलत बातों का भी अनुकरण होगा। सावरकर जी का चरित्र हम देखते हैं तो ये पूर्णता हमको उनके चरित्र में मिलती है। वर्णन बहुत हुआ है, अमित भाई के भाषण में भी आया। सब कुछ, सब प्रकार की प्रतिभा उनके पास थी। सावरकर जी का वर्णन करना है तो कई विशेषण लगते हैं। उनकी कविताओं को देखेंगे तो एक एक कविता में उनके व्यक्तित्व का एक एक पहलू मिलता है। स्वतंत्रता देवी की आरती जो उन्होंने कही है उसमें उत्कट स्वातंत्र्याकांक्षा स्पष्ट होती है। आखिरी के कड़ी में वो वीरभाव प्रकट होता है। हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते श्री स्वतंत्र थे, उसमें वो भाव आता है तुझ साठी जनन ते मरण, हे मरण ते जनन। ऐसे आज जिस गीत का विशेष स्मरण हम कर रहे हैं उस गीत में क्या है? भक्ति है, प्रेम, समर्पण, ये सब भक्ति के घटक है। आदमी जुड़ जाता है, जुड़ जाकर तन्मय होता है तो देश का दुख उसका दुख बन जाता है। अपने व्यक्तिगत, अपने शरीर मन बुद्धि के दुख वो भूल जाता है और देश की वेदना, देश का दुख, देश के हित के लिए प्रयास, यही उसके अपने जीवन के लिए प्रयास बन जाते हैं। ऐसी तन्मयता, और ये तन्मयता शुद्ध सात्विक प्रेम के कारण। मातृभूमि पर प्रेम नहीं करता वो कैसे पुत्र कहला सकता है अपने आप? सीधा प्रसारण आप अंडमान निकोबार के श्री विजयपुरम से देख रहे थे, जहां पर आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत इस समय संबोधित कर रहे हैं एक कार्यक्रम को। और कार्यक्रम क्या है कि इससे पहले, इस संबोधन से पहले डॉक्टर मोहन भागवत ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर उपस्थित थे,
जो सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी है, उनकी प्रतिमा का पहले अनावरण किया और उसके बाद ये जो कार्यक्रम है, ये सावरकर जी द्वारा रचित कविता, उसके 115 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये है सागरा तड़ मड़ला। इसके 115 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले संबोधन दिया और इस समय आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत संबोधित कर रहे हैं और विशेष रूप से सावरकर जी का जो व्यक्तित्व रहा है, उनका जो कृतित्व रहा है, उसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। अभी समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि अंडमान और निकोबार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि वीर सावरकर का जुड़ाव वहां पर रहा है। काला पानी की सजा उनको वहीं पर हुई थी और 2 उम्र की सजा हुई थी वीर सावरकर को। उन्हीं के सम्मान के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गए हैं और आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी इस समय वहां पर संबोधित कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।